Okay, good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma, your EVS teacher. Okay, so in our yesterday class, we have completed our chapter number 2, migration of families. Okay, and we had already discussed about question answers related to that chapter. So today we will continue our next chapter, chapter number 16, and chapter name is Our Pride 3. Clear? So let's start. What is pride? Pride means a feeling derived one's own achievements. Okay, आपकी achievement से, आपके success से जो आप feel करते हैं, okay, उसे हम क्या कहते हैं? Pride कहते हैं. Clear? So first we discussed about Dr. Vikram Sarabhai. So Dr. Vikram Sarabhai was a symbol of devotion and dedication. Okay, जो Dr. Vikram Sarabhai थे, वो devotion means faith and dedication means full loyalty के साथ में अपना full loyalty के साथ में work करते थे. Okay, so वो devotion and dedication के symbol माने जाते थे. He had special interest in mathematics and science right from his childhood. और उन्हें बचपन से ही mathematics में and science में special interest था. Means उसे वो mathematics and science उन्हें अच्छी लगती थी. He found practical solution of many complicated problems related to the universe and solar system. So उन्होंने यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनके प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट किए थे. ओके, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन दैट वी आर एक्चुअली डूइंग, ऐसे सॉल्यूशन जिन्हें हम करके देख सकते हैं. एंड इस तरह की जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी यूनिवर्स से, स्पेस से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम के उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे. So in the field of energy, he gave a new direction of our country and made extensive efforts for its peaceful use. And energy के field में उन्होंने हमारी country को एक new direction दी थी, एक नई दिशा दी थी. Okay, because उन्होंने बहुत सारा work किया था इस field में and made extensive efforts for its peaceful use. Okay, और उन्होंने इसके लिए एक ऐसे एफर्ट्स किए थे, एक्सटेंसिव लार्ज एरिया में एफर्ट्स किए थे कि हम इन जो भी एनर्जी है उसका हम पीसफुल तरीके से यूज कर सके. ओके, सो ही एस्टैब्लिश इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. सो उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, क्या फाउंड किया? दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो. ओके, ये इसके फाउंडर कौन है? दैट इज डॉक्टर विक्रम साराभाई. Due to his efforts, today India has launched many satellites in space which are made in our country. Okay, so उनके डॉक्टर विक्रम साराभाई के इन्हीं एफर्ट्स की वजह से आज हम इंडिया से बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं, मींस आर्टिफिशियल जो बॉडी हैं, ओके, उन्हें हम स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं. यहाँ से जैसे हम उन्हें लॉन्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड वो स्पेस में जाकर मोशन करती हैं एंड स्पेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट्स हमें देती हैं. ओके, एंड दीज सैटेलाइट्स आर मेड इन आवर कंट्री. एंड जो ये सैटेलाइट्स हैं ये कहाँ बनाई जाती है? हमारी कंट्री में ही. सो ही वाज नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट but also had an interest in art, education and society. So वो एक great scientist ही नहीं थे बल्कि उनका arts, education and other field में भी उनका interest था. Okay, so points for discussion are: what would you like to do in life? Which would make your family and country proud of you? आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना पसंद करेंगे जिससे आपकी फैमिली एंड कंट्री को आप पर प्राउड हो? So there are different opinion for different person. So I would like to arrange the facility of education and food supply for the poor children. It would make my family and country feel proud of me. Okay, इस तरह से different persons के लिए different thought हो सकते हैं कि आप ऐसा क्या work करना चाहेंगे कि आप अपनी family and country आप पर proud feel करें. Okay, so next question is,
which is the subject of your interest. It's also depend on person to person, that I have interest in science. Okay, now next is, in which type of works do we make use of energy? Okay, so we make use of energy in the field of electricity, machines, vehicles and cooking food, etc. Okay, अगर हम एनर्जी का पीसफुली यूज करना चाहते हैं, गुड फील्ड में, गुड वर्क में उसका यूज करना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट काइंड्स के वर्क में एनर्जी को यूज कर सकते हैं. लाइक इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं. We can use energy to make machines, vehicles, and also use for cooking food. Clear? Now, come to next person, that is Dr. Homi Jahangir Bhabha. Dr. Homi used to sleep very less during his childhood. डॉक्टर जो होमी थे वो अपने चाइल्डहुड में बहुत ही कम स्लीप करते थे. ओके, मींस उन्हें जो नींद है वो बहुत कम आती थी. His parents were worried about him, and उनके जो पेरेंट्स थे वो उनके लिए worried थे. Even the doctor were unable to find the reason of this problem. Even जो डॉक्टर थे वो भी इस जो प्रॉब्लम है इसका रीजन फाइंड आउट करने में अनेबल थे. मीन्स डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर होमी के साथ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली स्लीप नहीं कर पाते हैं. They said there is no problem with the health of your child. तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके चाइल्ड की हेल्थ के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली he is a child with such a sharp brain that there is always a continuous flow of thoughts in his mind. एक्चुअली डॉक्टर जो होमी थे उनका जो माइंड था, ब्रेन था, वो बहुत ही क्या था, शार्प था. ओके, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे. तो उनके माइंड में जो थॉट्स का फ्लो है, मीन जो हम सोचते हैं हमारे माइंड में, ओके, डिफरेंट डिफरेंट जो थॉट्स हम थिंक करते हैं, तो वो थॉट्स का फ्लो उनके माइंड में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता था, चलता रहता था. मीन्स वो कंटिन्यूसली किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते रहते थे. ओके, जिसकी वजह से उन्हें जो नींद है वो बहुत कम आती थी. So then after his parents drew his attention toward science. Okay, देन उनके पेरेंट्स ने क्या किया, डॉक्टर होमी जो थे वो इंटेलिजेंट तो थे, तो उन्होंने उनका जो अट्रैक्शन है, अटेंशन है, वो किसकी तरफ किया, साइंस की तरफ. ओके, सो साइंस के फील्ड में उन्होंने उन्हें बिजी करने की कोशिश की ताकि वो वहां पर अपने आप को बिजी रखें एंड और स्टडी करें साइंस पे. ही हैड एन इंटरेस्ट इन फिजिक्स. ओके, एंड उनका जो इंटरेस्ट था वो किसमें था, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान. ओके, however his father wanted him to be an engineer. जबकि उनके जो फादर थे वो उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, but he had interest in physics, and the physics is the scientific study of nature force such as light, sound, heat, electricity, pressure, etc. Okay, so जो भी नेचुरल फोर्सेस हैं लाइक साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, लाइट, ओके, तो इन सब की जो स्टडी है वो फिजिक्स में की जाती है. But his father wanted him to be an engineer. Therefore, for his higher education, he studied at Cambridge University. Okay, so उन्हें higher education के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो स्टडी के लिए गए. Later, he discovered meson, which is the heavy electron particle of cosmic rays. Okay, and later बाद में उन्होंने क्या सर्च किया, क्या डिस्कवर किया, फाइंड आउट किया, मेसॉन पार्टिकल जो कि एक हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, पार्टिकल्स ऑफ कॉस्मिक रेज. ओके, एंड कॉस्मिक रेज रिलेटेड टू यूनिवर्स. ओके, यूनिवर्स से रिलेटेड है कॉस्मिक रेज, एंड कॉस्मिक रेज में एक पार्टिकल है हैवी इलेक्ट्रॉन जिसे कि मेसॉन कहते हैं, उसे डॉक्टर होमी ने फाइंड आउट किया था. He was the first director of Tata Institute of Fundamental Research, and Tata Institute of Fundamental Research के वो first director थे. In his lifetime, he emphasized the use of indigenous resources so that India could become completely
self dependent in the field of atomic science. And अपने लाइफ टाइम में उन्होंने हमेशा किस चीज को एम्फेसाइज किया? एम्फेसाइज मीन्स गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस। किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया? टू बिकम कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, तो हमें उन्होंने जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज मीन जो स्वदेशी साधन हैं जो आपके देश में बनाए गए थे, ओके, लाइक पीएम नरेंद्र मोदी भी हमें कहते हैं, ओके, वोकल फॉर लोकल। तो जो हमारे लोकल हैं, हमारी कंट्री में जो मेड होती हैं मटेरियल्स, हम खुद बनाते हैं, ओके, हमारी नेटिव कंट्री में, तो हमें वो इंडिजीनियस जो रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में मेड होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हमें, ऐसे मटेरियल्स को हमें यूज करना चाहिए, सो दैट इंडिया कुड बिकम कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस। ओके, सो ताकि जो इंडिया है वो एटॉमिक साइंस के फील्ड में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ओके, हमें अनदर कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रहना पड़े कि अनदर कंट्री हमें जब मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे तो ही हम वर्क कर पाएंगे। ओके, तो हमें हमारी कंट्री में ही जो मेड थिंग्स हैं उन्हें ही यूज करना चाहिए। ही established three atomic research, namely Apsara, Cyrus and Jarlina. Okay, उन्होंने three atomic जो reactors हैं establish किए, and her name is Apsara, Cyrus and Jarlina, उन atomic reactors के name है। He emphasized the peaceful use of atomic power, and जो atomic power है, परमाणु जो power है, उसका भी उन्होंने peacefully तरीके से यूज करने के लिए क्या किया? एम्फेसाइज किया, फोर्स किया। ओके, इंपॉर्टेंस दिया कि हम जो एटॉमिक पावर है उसका गलत तरीके से यूज नहीं करें, उसका हम अच्छे फील्ड में, अच्छे वर्क में हमें जो एटॉमिक पावर है उसका यूज करना चाहिए। इन हिज ऑनर ट्रॉम्बे वॉज गिवन द नेम द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड उनके जो डॉक्टर होमी थे उनके ऑनर में, उनके सम्मान में जो ट्रॉम्बे है, ओके, मुंबई महाराष्ट्र में एक हेडक्वार्टर है, उसे नेम दिया गया द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नाउ थिंक एंड आंसर दिस। Why should we give emphasis on the use of indigenous resources? Okay, indigenous means native, okay, जो हमारी कंट्री में मेड होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज पर हमें क्यों एम्फेसाइज करना चाहिए, क्यों हमें स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इंडिजीनियस रिसोर्सेज को? So by the use of indigenous resources, the national income of our country stays stable, increase the advantage of employment, as well as nation become independent on all resources. Okay, तो यहाँ पर 3 जो reasons हैं वो बताए गए हैं indigenous resources को use करने के, कि क्यों हमें जो कंट्री में मेड रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करना चाहिए। फर्स्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री स्टे स्टेबल। हमारी कंट्री की जो इनकम है वो क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। अगर हम बाहर से प्रोडक्ट अदर कंट्रीज से हम रिसोर्सेज को बाय करते हैं तो हमारे कंट्री का इनकम अदर कंट्रीज में जाता है ना, मनी। बट अगर हम कंट्री में ही मेड जो रिसोर्सेज हैं, इंडिजीनियस रिसोर्सेज हैं, उनका अगर हम यूज करते हैं, देन हमारी जो कंट्री का इनकम है वो स्टेबल रहता है। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज द एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, जो एम्प्लॉयमेंट का, जॉब का जो एडवांटेज है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, अगर हम इंडिजीनियस रिसोर्सेज का यूज करेंगे मीन्स हमें हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। ओके, एंड फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए वर्कर का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हमारे जो कंट्री के पीपल हैं उन्हें, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी दूर होगा, उन्हें भी जॉब मिलेगा। And third is nation become independent on all resources, and जो हमारा नेशन है, हमारी कंट्री है, वो क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, उसे किसी दूसरे कंट्रीज पर, दूसरे पर्सन पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। ओके, आत्मनिर्भर जिसे हम कहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा हमारी कंट्री ऑन ऑल रिसोर्सेज। ओके, जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, what do you understand by the peaceful use of atomic power? अब डॉक्टर जो भाभा है, ओके, डॉक्टर जो होमी जहांगीर भाभा है, उन्होंने एटॉमिक जो पावर है उसके पीसफुल यूज पर हमें एम्फेसाइज किया था, फोर्स किया था कि हमें इसका पीसफुली यूज करना चाहिए। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर? एटॉमिक पावर का पीसफुल यूज का क्या मीनिंग है? So the peaceful use of atomic power means that atomic power should be used in producing uh, in good work like electricity, machines, vehicles, and cooking food, etc. Okay, not making
एटम बॉम्ब्स। ओके, सो जो एटॉमिक पावर है उसका हमें जो गुड फील्ड है, अच्छे फील्ड है, वहां वर्क करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, एंड जो अदर फील्ड है वहां उनका उसका यूज करना चाहिए एटॉमिक पावर का, नॉट मेकिंग एटम बम। ओके, एटम बम बनाने में हमें एटॉमिक पावर का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, in honor of the people who did significant work, schools, institution, road, etc. are named after them. Find out any two such example in your vicinity, explain about them and their significant work. Okay, so ऐसे people जिन्हों की बहुत ही significant मीन्स हमारी country के लिए बहुत ही important work किया है, ओके, हमारी कंट्री को में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी कंट्री के लिए। ओके, तो ऐसे पीपल के ऑनर्स में जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं या रोड्स हैं, उनके नेम रखे जाते हैं। ओके, सो आपको अपनी विसिनिटी में, अपने नेबरहुड में ऐसे कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, एंड उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, उन्होंने क्या सिग्निफिकेंट वर्क किया आपकी कंट्री के लिए, आपके फील्ड के लिए, आपके एरिया के लिए। ओके, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट Ambedkar Mark and the Bhabha Atomic Research Center are situated in my vicinity. Dr. Bhabha was a great scientist who discovered meson and emphasized the use of indigenous resources so that India could become completely self-dependent in the field of atomic science. And on the other hand, the Constitution of India was prepared by under the presidentship of Dr. Ambedkar. Okay, इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर की प्रेसिडेंटशिप में भी क्या किया गया था, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे प्रिपेयर किया गया था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज जीजाबाई। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल। हम सब शिवाजी का नेम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सब ने सुना है शिवाजी का नेम। सो द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग हिज मैग्निफिकेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी गोज टू हिज मदर जीजाबाई। एंड जो शिवाजी थे उनका जो भी मैग्निफिकेंट कैरेक्टर था, मीन्स जो इनका उनका जो इम्प्रेसिव जो कैरेक्टर था, ओके, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, ओके, उसे मेट करने में, बिल्डअप करने में, बनाने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसका पूरा जो क्रेडिट है वो किसे जाता है, शिवाजी की जो मदर है जीजाबाई। ओके, जीजाबाई was a very intellectual, religious, strongly determined, self-esteemed woman having believed in religious principle. Okay, जो जीजाबाई की मदर है वो वह थी इंटेलिजेंट थी, ओके, रिलीजियस थी, मीन्स धार्मिक थी, धर्म में विश्वास करती थी, रिलीजन में बिलीव करती थी, स्ट्रांगली डिटरमाइंड थी, मीन्स उनका जो डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ संकल्प था। ओके, जो भी वो ठान लेती थी वो करती थी। ओके, तो स्ट्रांगली डिटरमाइंड थी एंड सेल्फ स्टीम्ड वुमेन हैविंग बिलीव इन रिलीजियस प्रिंसिपल। ओके, तो वो सेल्फ स्टीम्ड वुमेन थी एंड वो जो भी प्रिंसिपल थे रिलीजन से रिलेटेड, नियम थे, ओके, सिद्धांत थे, उनमें वो बिलीव करती थी, विश्वास करती थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी एंड वो तुलजा भवानी की भक्त थी, ओके, डिवोटी थी। At the time of Shivaji's birth, she believed in the fort of she lived in the fort of Shivner. And जब शिवाजी का बर्थ हुआ तो वो कहाँ लिव कर रही थी, कहाँ स्टे कर रही थी, that is the fort of Shivner. शिवनेर के फोर्ट में वो रह रही थी। She always prayed for self-respect, bravery and well-being of her child. एंड उन्होंने हमेशा अपने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आत्मसम्मान के लिए, बहादुरी एंड वेलबींग के लिए हमेशा प्रे किया। ओके, she used to narrate stories of Ramayana and Mahabharata to his son as she wanted him to be glorious and admire. And हमेशा वो जो शिवाजी थे उन्हें रामायण एंड महाभारत की जो स्टोरी थी वो नरेट करती थी, मीन्स सुनाती थी, टेल करती थी। ओके, because she wanted him to be glorious and
एडमायरेबल, क्योंकि वो भी क्या चाहती थी कि जो उनका सन है वो भी बहुत ही ग्लोरियल मीन्स महान, ओके, फेमस एंड रिच हो, एंड एडमायरेबल मीन्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट। जितने भी जो पीपल्स हैं, कंट्री के जो लोग हैं, वो क्या करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें। She created self-respect in Shivaji's heart toward his culture, and उन्होंने शिवाजी के हार्ट में, शिवाजी के मन में अपनी कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट की थी, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाई थी, मीन्स जो शिवाजी थे वो अपनी कल्चर की, अपनी संस्कृति की रिस्पेक्ट करते थे। She enhanced his knightly enthusiasm, वो उन्होंने क्या किया था, अपने जो सन था, अपना जो बेटा था शिवाजी, उसमें उनमें इंटरेस्ट, एंथुसिज्म इंक्रीज किया था, ओके, अपने कल्चर के लिए। सो शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर ओनली टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कोंडाला। सो जो शिवाजी हैं, उन्होंने कोंडाला के फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, उस पर अपना कब्जा करने के लिए, ओके, जो वॉर हुआ था उसमें जो भी इंस्पिरेशन थी वो किससे गॉट की थी, अपनी मदर से। So Jijabai made her son a great patriot, and we can take a lesson from her life. Okay. So जीजाबाई ने अपने सन को एक ग्रेट पैट्रियट में देशभक्त बनाया था, जो अपनी कंट्री को, अपनी कल्चर को लव करते थे, ओके, एंड वी कैन टेक अ लेसन फ्रॉम हर लाइफ, और हम उनकी लाइफ से लेसन सीख सकते हैं। She always encouraged her son to face great danger and challenges to protect the honor of our country. And उन्होंने हमेशा अपने सन को encourage किया, support किया कि वो अपनी कंट्री के ऑनर के लिए, अपने देश के सम्मान को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ऑलवेज जो डेंजर हैं या चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करें, उनका सामना करें। Shivaji learned only from his mother the quality to think peacefully even at the time of crisis and make foolproof strategies. So जो शिवाजी हैं, उन्होंने अपनी मदर से कौन सी क्वालिटी गेट की थी, कौन सी क्वालिटी उन्होंने अपनी मदर से सीखी थी, that think peacefully even at the time of crisis, means डिफिकल्टी के वक्त या डेंजर के वक्त भी पीसफुली माइंड एकदम तरीके से सोचना, एंड फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाना, ओके, जो भी आप करने जा रहे हैं, द एक्शन ऑफ द प्लानिंग, हाउ टू डू, कैसे हमें कोई काम करना है, तो उसकी जो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, प्लान है, वो बनाना भी उन्होंने किससे सीखा था, अपनी मदर से, ओके। सो थिंक एंड आंसर दीज। Who tells you stories at home? If you have heard any story about a great person or a scientist at your home, then tell that story to everyone in your class. तो आपके घर पे, आपके होम पे आपको कौन स्टोरी सुनाता है, एंड आपने अगर किसी ग्रेट पर्सन और साइंटिस्ट की स्टोरी सुनी है अपने होम पे, तो उसे आप अपने क्लासमेट्स को भी नरेट कर सकते हैं। So generally, Dadaji tells stories at home, and we had heard the story of Dr. APJ Abdul Kalam. He was born in a very poor family, and he had an interest in science, and he always used to learn. तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी स्टोरी सुनी है। वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड उनका साइंस में इंटरेस्ट था, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू लर्न, और हमेशा वो सीखना उनको अच्छा लगता था। He became a scientist, and वो एक साइंटिस्ट बने थे, and India could become completely self-dependent in the field of atomic science from the conception of his. And he is known as the मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम है, उन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, एंड लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे। नाउ नेक्स्ट इज शिवाजी's inspiration was his mother. Who is your inspiration in your life and why? जो शिवाजी हैं, वो उनका इंस्पिरेशन कौन था, उनकी मदर थी। सो हु इज योर इंस्पिरेशन, आपका इंस्पिरेशन कौन है एंड क्यों, ओके। सो गांधी जी इज आवर इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ बिकॉज ही bounded the British to leave our country with the principle of
नॉन वायलेंस। ओके, तो हम गांधी जी को भी अपना इंस्पिरेशन मान सकते हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्हें बाउंड किया था कि वो हमारी कंट्री को लीव करें एंड द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, अहिंसा का, नॉन वायलेंस का जो रास्ता है, पाथ है, उसे उन्होंने अपनाते हुए, उसके प्रिंसिपल पर चलते हुए उन्होंने ब्रिटिश को बाउंड किया था, मजबूर किया था कि वो हमारी कंट्री को लीव करें। नेक्स्ट इज, what do you want to become in your life when you grow up? आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे? सो दिस आंसर्स इज वेरी टू पर्सन। ओके, सबका अपना अपना व्यू है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? ओके, नेक्स्ट इज, what efforts will you make to achieve your goal? एंड आप अपने जो गोल है, आपका जो एम है, उसे अचीव करने के लिए आप उसके लिए क्या एफर्ट्स करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? ओके, सो वी शुड लर्न एंड प्रैक्टिस इन आर फील्ड। ओके, जिस भी फील्ड में आप बड़े होकर जो भी आप बनना चाहते हैं, तो अगर आप अपने उस एम को या गोल को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा एंड उस फील्ड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, सो जीजाबाई टॉट शिवाजी टू मेक स्ट्रेटेजी। ओके, तो जीजाबाई ने शिवाजी को स्ट्रेटेजी बनाना, मीन्स प्लान बनाना, कोई भी वर्क आपको कैसे करना है, द एक्शन ऑफ प्लानिंग, हाउ टू डू, कैसे आपको कोई वर्क करना है, वो जीजाबाई ने शिवाजी को टॉट किया था, सिखाया था। So, like this, you also make a week's timetable for your studies with the help of your teacher or your family member. Okay, so the timetable is also a form of strategy. Okay, तो टाइम टेबल बनाना भी आपकी स्टडी के लिए, वीकली टाइम टेबल आप बना सकते हैं, ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजी, ये भी एक प्लान है। ओके, सो I hope you all understood about today's topic. And once repeating again from starting what we had discussed today. We have discussed about Dr. Vikram Sarabhai, that is a symbol of devotion and dedication, and he established Indian Space Research Organization. Okay, and he had also interest in mathematics and science. And due to the efforts of Dr. Vikram Sarabhai, today India has launched many satellites in space. Okay, which we are made in our country. Next one is Dr. Homi Jahangir Bhabha. And Dr. Homi used to sleep very less during his childhood. And the doctor said that there is no problem with the health of डॉक्टर होमी। ओके, डॉक्टर होमी थे, उन्हें स्लीप, नींद बहुत कम आती थी। दैन डॉक्टर को जब दिखाया गया, सो डॉक्टर ने कहा कि ये उनकी हेल्थ के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ही इज अ चाइल्ड विद अ शार्प ब्रेन एंड there is always a continuous flow of thoughts in his mind, and उनके mind में continuously जो thought का flow है वो चलता रहता है। ओके, वो किसी ना किसी चीज के बारे में continuously thought करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। So therefore his parents drew his attention toward science, इसलिए उनके parents ने उनका जो attention है वो science की तरफ किया। ओके, एंड ही हैड इंटरेस्ट इन साइंस, एंड जो डॉक्टर होमी थे उनका इंटरेस्ट किसमें था, साइंस में था, फिजिक्स में। ओके, एंड फिजिक्स इज अ scientific study of natural forces like light, sound, heat, electricity, etc. Okay, and later he studied at Cambridge University and he discovered meson, which is the heavy electron particle of cosmic rays. Okay, and cosmic rays related to universe, and he was the first director of Tata Institute of Fundamental Research. Okay, and in his lifetime he emphasized the use of indigenous resources. Okay, and अपने lifetime में उन्होंने हमेशा indigenous resources means जो हमारी country में made हैं ऐसे material को use करने के लिए हमेशा special importance दिया, so that India could become completely self-dependent in the field of atomic science, ताकि जो India है वो atomic science के field में self-dependent हो सके। Okay, and he also established 3 atomic reactor, Apsara, Cyrus, and Jarlina. And in his honor,
Trombe was given the name the Bhabha Atomic Research Center. Okay, so Dr. Homi के नेम पर एक research center भी है जिसे हम the Bhabha Atomic Research Center कहते हैं. Okay, so why we use emphasize on the use of indigenous resources? हमें क्यों use करने चाहिए indigenous resources? So because by the use of indigenous resources, the national income of our country stays stable. It increase the advantage of employment, and nation become independent on all resources. Okay, that's why we use of indigenous resources. Okay, and what is the peaceful use of atomic power? So the peaceful use of atomic power is that we use in producing electricity, not making atom bomb. Okay, तो हमें electricity produce करने में and other field में peacefully atomic power का use करना चाहिए. Now next is Jijabai. So we all know about Shivaji, and Jijabai is the mother of Shivaji. Okay, she is a strongly determined lady, means having made a strong decision. Okay, वो जो भी decision लेती थी वो strong होता था, intelligent थी and religious थी. जो हमारा in culture है इंडिया का, हमारी country का religion है, धर्म है, उनमें वो believe करती थी. Okay, and he was a devotee of तुलजा भवानी. ओके, तुलजा भवानी की वो डिवोटी थी, भक्त थी. ओके, एंड शिवाजी के बर्थ के वक्त शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर एंड शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्रेवरी एंड वेल बीइंग ऑफ हर चाइल्ड. एंड शी यूज्ड टू नरेट स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत ऑफ हिज सन. वो अपने सन को हमेशा रामायण एंड महाभारत की जो स्टोरीज हैं वो नरेट करती थी, सुनाती थी, बिकॉज शी वांटेड हिम टू बी ग्लोरियस एंड एडमायरेबल, क्योंकि वो भी चाहती थी कि जो उनका सन है वो भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी बने. ओके, and she created self respect in Shivaji's heart toward his culture. And उन्होंने इंडियन जो कल्चर है उसके लिए शिवाजी के जो हार्ट में, मन में सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट किया था. ओके, एंड वो हमेशा उन्हें इंस्पायर करती थी, दैट he always encouraged her son to face great danger and challenges to protect the honor of our country. हमारी कंट्री के ऑनर को, सम्मान को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आपको शिवाजी को एनकरेज करती थी, सपोर्ट करती थी कि आपको कोई भी डेंजर या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अगर अपनी कंट्री के ऑनर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, देन यू कैन. And Shivaji learned only from his mother the quality of think peacefully even the time of crisis and make foolproof strategy. And शिवाजी ने क्राइसिस के टाइम पर, डिफिकल्टी और डेंजर के टाइम पर भी पीसफुली थिंक करना एंड फुल प्रूफ जो स्ट्रेटजीज है, प्लान बनाना, वो किससे सीखा था? ये क्वालिटीज अपनी मदर से. ओके, so you can also make a weekly timetable for your study. Okay, the timetable is also a form of strategy. So I hope you all understood about today's topic. Our next topic we will continue in our next class. Okay, and if you have any problem, any query, any question related to today's topic, you can call me. Okay, till then, good, take care of yourself and bye bye.